नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में नई तेजी का श्री गणेश। 16 महीने के उच्चतम स्तर पर निफ्टी, सेंसेक्स ने भी इस साल का रिकॉर्ड तोड़ा। In the coming months, these prices are going to come down, and in some cases, maybe even come down significantly. The initial indications are already available. वित्त मंत्री ने जताई उम्मीद कम होगी महंगाई। सीएनबीसी टीवी 18 इंडिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड में हुए शरीक। राजस्व और आर्थिक मामलों के सचिवों ने जताया भरोसा। अप्रैल 2017 से लागू होगी जीएसटी। एम्पावर्ड कमेटी के साथ बैठक में कारोबारियों ने कहा 18% से कम रखें टैक्स दर। पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी। दिल्ली में जॉन कैरी और सुषमा स्वराज के बीच सरहद पार से आतंक को रोकने पर सहमति। वॉशिंगटन में पर्रिकर ने इस्लामाबाद पर बोला हमला। ₹1 में कीजिए 300 मिनट बाद रिलायंस कम्युनिकेशन ने पेश किया धमाकेदार ऑफर। देश में लॉन्च हुई 1 करोड़ से महंगी जीप। एक रिचार्ज में 100 किलोमीटर चलने वाली इलेक्ट्रिक बाइक स्पैरो भी आई बाजार में। सरकार को आने वाले दिनों में महंगाई कम होने का भरोसा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीएनबीसी टीवी 18 के खास कार्यक्रम इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स में कहा कि दाल और सब्जी की कीमतें बढ़ने से महंगाई 6% पर पहुंची थी, लेकिन आने वाले महीनों में सब्जी दाल की कीमतें घटेंगी तो महंगाई भी कम हो जाएगी। Once the indications are that in the coming months these prices are going to come down, and in some cases maybe even come down significantly. The initial indications are already available, and therefore to hope for a rate cut by any minister or any other person in the industry or otherwise, I think would be logical. But the decision then rests with the Reserve Bank, which hopefully very now will be decided along with the Monetary Policy Committee. वहीं वित्त मंत्री ने इस बात का भी भरोसा दिया है कि जीएसटी लागू होने से कंज्यूमर पर टैक्स की मार नहीं बढ़ेगी। इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी की दर ऐसी होनी चाहिए जिससे महंगाई भी न बढ़े और ग्रोथ पर भी उल्टा असर न पड़े। Now you can't squabble over rate and finally result in a situation that center and state either have excess revenue at the cost of the taxpayer, so that will add to inflation and other complications. At the same time, you can't have a rate in which the entire developmental activity of the state suffers because it's got inadequate revenue. जीएसटी पर राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया का कहना है कि सरकार 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने के लिए तैयार है। Government is fully geared. We are all prepared for it. We have been preparing for it for last 3 years. So it is not that we have started preparing for GST after the amendment has been passed. The IT system is getting ready for last 3 years. It is not happening today. It's there. So we are all set. It's for the business people to now accept it and to say that we are ready. वहीं वित्त सचिव अशोक लवासा का कहना है कि जीएसटी पर आपत्तियों को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। It is not as if that in one meeting all the issues are going to get resolved. This is work in progress, and I'm sure given the nature of the change which is going to come about, it is but expected that all stakeholders will have many concerns. Yes. For example, the compensation to the states is a concern of the Ministry of Finance. Yes. So this is also something that we will have to be prepared for. We will have to assess the kind of revenues which will flow. The commitment by the government of India to make good the loss of the states, the so-called loss of the states, I think that commitment stays. And we will have to work out the numbers in terms of the revenue expected by this change. आर्थिक मामलों के सचिव केंद्र और राज्य 2017 से जीएसटी लागू करने के लिए तैयार है। We are looking at a very small list of exempted goods. Okay. And once you are exempted, in fact, you suffer from certain disadvantages also. Because unless there is a GST paid on the final product, right, you don't get the benefit of the input tax credit. And what is the point in creating one India, one market, right, one tax, unless you are able to avail the input tax credit?
आज जीएसटी एम्पावर्ड कमेटी से इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इसमें इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रियों की कमेटी को जीएसटी पर अपने सुझाव दिए और मांगे रखी। इंडस्ट्री की मांग है कि जीएसटी रेट 18% से ज्यादा ना हो। उनका कहना था कि अगर ये ज्यादा होता है तो जीएसटी लागू करने का खास फायदा नहीं होगा। इसके अलावा कारोबारियों ने सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन की मांग को भी जोरदार तरीके से रखा। कारोबारियों का कहना है कि जीएसटी मॉडल लॉ में हर राज्य में अलग अलग रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, जो पूरी प्रक्रिया को फिर से जटिल बना देगा। आज की बैठक में आदि गोदरेज, पवन गोयनका, नौशाद फोर्ब्स, नेस्कॉम प्रेसिडेंट एन चंद्रशेखर जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज शामिल हुए। There are many issues that will go into the bill that will come later. This is only constitutional amendment. Now will come the bills. With the bills will come the rules. So I would say this is work in progress, and we hope that this will move forward in the manner in which state and the centre and the businesses of India perceive themselves to be. फिक्की के चेयरमैन हर्ष मारीवाला ने कहा कि जीएसटी की दरों पर अभी और ज्यादा विचार करने की जरूरत है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अर्नब वसावड़ा ने। जीएसटी बिल पास होने के बाद पहली एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग थी इंडस्ट्री के साथ। फिक्की की ओर से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो डिस्कस किए? बात की कि जैसे रेट के बारे में बात की, तो रेट हैज टू बी रीजनेबल, it has to doesn't have to lead to inflation, compliance has to improve, and finally collections have to improve. तो हमने एक फॉर्मूला दिए गवर्नमेंट को कि कैसे रेट गुड्स को क्लासिफाई करें, कौन से रेट में जहाँ भी एक्साइज नहीं है और वैट नहीं है उसको एग्जाम्पल लिस्ट में जाना चाहिए, जहाँ भी एक्साइज नहीं है और वैट है स्टेट लेवल पे उसको मेरिट लिस्ट में जाना चाहिए, और सब रेट स्टैंडर्ड रेट में जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरिट का रेट अभी 12% अनाउंस किया, तो उससे कुछ कम कर सकते हैं। हाँ। और सर एक सवाल ये कि जिस तरीके से जीएसटी बिल पास किए जा रहे हैं स्टेट्स के द्वारा और जिस तरीके से इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन हो रहे हैं, आपको लगता है कि 1 अप्रैल की जो डेडलाइन है उसको मीट करने में आसानी मालूम नहीं है। जब अभी कैसे स्टेट लेवल पे क्या प्रोग्रेस होता है एम्पावर्ड कमेटी का, उस पर डिपेंड होगा, क्योंकि उनको बहुत आइटम रिजॉल्व करनी है, रेट क्या है, कौन से आइटम कौन से लिस्ट में जाएगी, तो उस पर डिपेंड होगा, मगर अभी डिफिकल्ट लग रहा है। एफआईओ प्रेसिडेंट आरसी रल्हान ने एम्पावर्ड कमेटी के साथ बैठक के बाद कहा है कि घटते एक्सपोर्ट के बीच सरकार को टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए। हमारा मेन कंसर्न जो है वो है रिफंड ऑफ द टैक्सेस, इनपुट टैक्सेस। बहुत ज्यादा सीरियस इशू है, क्योंकि अगर जीएसटी 18% पे आता है, आज की डेट में हम 5%, 6% वैट है, तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है बहुत ज्यादा ब्लॉक होने वाला है। हम ये चाहते हैं कि एक्सपोर्ट पैसे पहले ही बहुत अंडर स्ट्रेस है, अगर पहले ही पिछले 20 महीने से बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही है, इसको ज्यादा कम्पिटिटिव बनाने के लिए रिफंड प्रोसेस को बहुत ही सिंपल और आसान बनाना पड़ेगा। और अब बुलेटिन में बात करेंगे बाजार में जहां पर नई तेजी का श्री गणेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजी के बाद यही सवाल है कि क्या बाजार में नई तेजी का श्री गणेश हो गया है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बाजार में चौतरफा तेजी दिखी, और जहां निफ्टी 16 महीने की ऊंचाई पर तो सेंसेक्स 13 महीने के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 450 पॉइंट चढ़ा और 28,000 के पार गया। निफ्टी भी 8,750 के करीब बंद हुआ। बाजार में आज दिग्गजों में जमकर खरीदारी हुई, खासकर आईटी, ऑटो, बैंक शेयर में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। बाजार पर अब और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह। अनिल जी, बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा आज। तो ये जो तूफानी तेजी थी उसकी क्या खास वजह रही? चौतरफा अच्छी खबरें, और शुरुआत हुई अमेरिका से। कल देर रात अमेरिका में सेंचुरी मार्कर डाउ ऊपर बंद हुआ, जिसका अंदाजा नहीं था कल भारतीय बाजारों को बंद होते वक्त। तो कुल मिलाकर अप्रत्याशित तेजी अमेरिकी बाजारों में। एशियाई बाजार मजबूत खुले, यूरोप की शुरुआत ठीक ठाक हुई, तो ग्लोबल मार्केट्स का मजबूत माहौल भारतीय बाजारों में आज सुबह शुरुआती कारोबार से ही जोश भरते हुए नजर आया। और उसके बाद कल के सेशन में एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी के आंकड़े आए, कैश मार्केट के भी और वायदा कारोबार के भी। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी की, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज की तरफ से जो बड़ी बिकवाली होती दिख रही थी, वो बिकवाली रुकती नजर आई, उससे बाजार का मूड ठीक हुआ। इसके साथ ही घरेलू फंड जो अब तक बिकवाली कर रहे थे, इन्होंने भी अपनी बिकवाली थोड़ी सी रोकी, तो यहां से भी काफी हद तक बाजार में जोश आता हुआ नजर आया। तो ये 3 कारण तो पूरी तरह से तेजी में साफ साफ नजर आए। लेकिन इनके अलावा बैंकिंग शेयर जो थोड़ा सा रुकते हुए नजर आ रहे थे, आज बैंकिंग शेयरों में भी दमदार खरीदारी होती हुई दिखी। और 8,700 के पार जैसे ही निफ्टी निकला टिका, उसके बाद
काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग, मंदी की पोजीशन कटी और फ्रेश खरीदारी भी होती दिखी। तो चौतरफा खरीदारी, सेंसेक्स निफ्टी नहीं बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी बड़े एक्शन में थे और सबसे ज्यादा तो इस तेजी को लीड किया बैंक्स ने। तो अनिल जी, अगर हम आपने जैसे बैंक्स के बारे में कहा तो बैंक तो एक्शन में रहे, लेकिन और कौन से सेक्टर्स या शेयर से जहां सबसे ज्यादा एक्शन रहा? ऑफ कोर्स बैंक भी। बैंक में भी दोनों ही, सरकारी भी और प्राइवेट बैंक भी। सरकारी बैंक में देखिए मिड कैप सरकारी बैंक जमकर दौड़े, ओबीसी, इलाहाबाद, सिंडिकेट, यूनियन। लेकिन प्राइवेट बैंक्स में दिग्गजों में अच्छी खरीदारी थी। यस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये तमाम दिग्गज मजबूती के साथ बंद हुए। लेकिन असली रफ्तार दिखी दोपहिया वाहन वाले शेयरों में। टीवीएस मोटर, आयशर, बजाज और हीरो, ये चारों ही टू व्हीलर स्टॉक अच्छी तेजी दिखाने में कामयाब रहे। आईटी जो अब तक पिट रहा था, आज शानदार रिकवरी दिखाई आईटी शेयरों में। टेक महिंद्रा चला, उसके साथ साथ एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस जैसे बड़े शेयर भी आज जोश में थे। सीमेंट शेयरों की मजबूती बरकरार रही। एसीसी, अंबुजाबी और आदित्य बिरला ग्रुप की तमाम कंपनियों में आज तेजी थी। उनमें से अल्ट्राटेक और ग्रासिम लीड करते हुए दिखे। फार्मा शेयरों में भी अच्छी रिकवरी दिखी, जिसे सन, सिप्ला, डॉक्टर और ल्यूपिन ने लीड करने का काम किया। ऑयल एंड गैस स्पेस के दिग्गज गेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल तीनों ही सरकारी कंपनियां दमदार प्रदर्शन करती हुई दिखी। और इनके अलावा निफ्टी पर मजबूत शेयरों की लिस्ट देखें तो बॉश, हिंडाल्को, एशियन पेंट्स और मारुति ने आज 5000 के ऊपर की नए हाईज के साथ क्लोजिंग दी। अब आइए रिजल्ट्स पर। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए। डीएलएफ के नतीजे कमजोर थे लेकिन स्टॉक तेजी दिखाकर बंद हुआ। जीएमडीसी, आरसीएफ और मोइल, इन तीन सरकारी कंपनियों ने भी कल ही बाजार में अपने नतीजे पेश किए बंद होने के बाद। आज जो नतीजे आए, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और वर्लपूल के नतीजे बाजार में आज आते हुए नजर आए। अब कुछ स्टॉक खबरों के दम पर एक्शन में जो दिखे, टीडी पावर और रामकी इंफ्रा, इन दो कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने की खबर थी। जय कुमार इंफ्रा लगातार चौथा दिन था आज ऊपरी सर्किट पर, लेकिन जैसे ही सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर आई कि इनकम टैक्स के छापे पड़े, ये सर्किट खुला, स्टॉक काफी तेजी से फिसला। डीएचएफएल के एक और एनसीडी इश्यू को शानदार रेस्पॉन्स मिला और स्टॉक 3% से ज्यादा मजबूत बंद हुआ। जी, बहुत शुक्रिया अनिल जी। और उम्मीद यही कि बाजार में जोरदार तेजी, या जिसे हम तेजी का श्री गणेश कह रहे हैं, जारी रहे। इधर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी नवीन अग्रवाल ने बाजार पर पॉजिटिव नजरिया रखते हुए कहा है कि मार्केट में लंबी अवधि में तेजी रहने की संभावना है। उनके मुताबिक मॉनसून और 7वें वेतन आयोग जैसी पॉजिटिव डेवलपमेंट से आने वाले वक्त में बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। I think we remain optimistic from a longer term perspective as far as the markets are concerned, and we think as far as valuations are concerned, given the reforms, the benefits of GST, the benefit of monsoon, the benefit of 7th pay commission, the benefit of investment cycle coming back, I think there is a lot of excitement awaiting the markets over the next couple of years. बाजार में कंज्यूमर सेक्टर में निवेश का बेहतरीन मौका है। मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन ने ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि टायर और पेपर से जुड़ी कंपनियों में भी निवेश किया जा सकता है। कंजम्पशन थीम में ऑटोमोबाइल है, उसके साथ साथ कुछ हद तक ऑटो एंसिलरीज आ जाती हैं। उसके बाद हाउसिंग रिलेटेड सारी कंपनियां, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस, और उसमें भी जो थोड़ी सी छोटी कंपनियां हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, वहां पर थोड़ी संभावना है। बाकी जो है सॉफ्ट कमोडिटीज फिर से कुछ दिखा रहे हैं ऊपर का रुझान, तो उसमें अगर आप देखें तो टायर्स, पेपर, इस तरह की कमोडिटी साइड कंपनीज में भी शायद अपसाइड मिल सकता है इस लेवल से। कल पेश होने वाले जीडीपी के आंकड़ों में दबाव दिख सकता है। अनुमान के मुताबिक मांग में सुस्ती का आसार आंकड़ों पर दिखेगा। हालांकि अप्रैल जून तिमाही में ग्रोथ 7.6% रहने की उम्मीद है। वहीं तिमाही दर तिमाही जीवीए और जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में यह आंकड़ा 7.9% पर रहा था। 2 सितंबर को देश में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से पहले मजदूरों और कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार ने आज बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने अकुशल गैर कृषि कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। दिस इज फॉर अनस्किल्ड नॉन एग्रीकल्चर इन कैटेगरी सी एरियाज, और ये फ्लोर होता है, न्यूनतम माना जाता है। ये जो मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड है लेबर मिनिस्टर की अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में यह तय होता है और उसकी मीटिंग हुई और सरकार ने उसकी सिफारिशों को माना है और इसको ₹350 पर डे, ₹350 पर दिन के हिसाब से तय किया गया। हालांकि इस कदम के बावजूद ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल को वापस नहीं लिया है। लेबर मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अपील भी बेअसर रही है। पर इस बीच सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए संशोधित दर पर पिछले 2 साल का बोनस देने का ऐलान किया है।
सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं केंद्रीय सरकार के, उनके 2 वर्ष का 2014-15 और 2015-16 2014-15 एंड 15-16 का रिवाइज्ड नॉर्म्स के बेसिस पे बोनस इंटाइटलमेंट ड्यू था। उस बोनस इंटाइटलमेंट को रिलीज करने का सरकार ने फैसला किया है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर दोहरे रवैये पर निशाना साधा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी कहा कि दुनिया को पता है कि लश्कर ए तैयबा और हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की जमीन से चलते हैं। इसके अलावा जॉन केरी ने कहा कि अमेरिका भारत के पावर ग्रिड को अपग्रेड करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका में इस वक्त जो रिश्ते हैं वो पहले से कहीं ज्यादा प्रगाढ़ हैं। सेक्रेटरी केरी और मैंने आतंकवाद का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था को मजबूत करने पर भी चर्चा की। हम इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद का सामना करने के लिए आपसी सहयोग के लिए और उपाय किए जाने चाहिए, विशेषकर ऐसे आतंकवादी जिनकी पहचान कर ली गई है और संदेह के घेरे में हैं, उनसे संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के समझौते को शीघ्र प्रभावी करने की आवश्यकता है। The United States continues to support all efforts to bring the perpetrators of the Mumbai and the Pathankot attacks to justice. And we cannot and we will not make distinctions between good and bad terrorists. Terror is terror, no matter where it comes from or who carries it out. और अमेरिका में मौजूद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी पाकिस्तान को घेरा। पर्रिकर ने जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्रिकर ने कहा कि थोड़े से लोगों ने राज्य की ज्यादातर आबादी को बंधक बना रखा है। पर्रिकर ने कहा कि सीमा पार से कश्मीर घाटी में हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही है। वहीं भारत अमेरिका संबंध पर उन्होंने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से लड़ने में सहयोग करते रहेंगे। As far as Kashmir is concerned, I think the government of India has been very proactive. It's more of a violence which comes from across the border. And curfew, if you are aware, curfew is already being lifted. I think it is already lifted yesterday. 3rd or 4th, all-party team is also going. We are not. Kashmir is actually having a government which is democratically elected, and the chief minister belongs to the valley. So I think you must have seen her press conference expressing that few small percentage is holding the majority at ransom. और महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूरी खबर आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। झूठा प्रचार करने वाले सितारों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार कड़े नियम बनाएगी, लेकिन उससे पहले खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय इस पर दूसरे देशों में जारी कानून और नियमों की स्टडी करेगा। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर हुई मंत्रियों के समूह की बैठक में माना कि ये मामला सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ा है और इस पर भी किसी तरह की राहत नहीं होनी चाहिए। जो 2 गंभीर मामले हैं, एक सेलिब्रिटीज का है और दूसरा मिलावट का है, और ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए काफी जो है महत्व रखता है। तो इसमें अंत में यही फैसला हुआ है, चूंकि पार्लियामेंट का सेशन तो नवंबर में होने वाला है, तो इसके बाद एक बैठक और होगी। लेकिन इस बीच में हम डिपार्टमेंट के तरफ से ये जो है पता लगाएंगे और कि पूरे विश्व में जो सेलिब्रिटीज के संबंध में और जो मिलावट के संबंध में क्या क्या कानून हैं, और उसमें जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट में सबसे उपयुक्त होगा उसको जो है हम लोग अगले कमेटी की बैठक में जो है उसको क्या कहते हैं कि रखेंगे। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की सालाना बैठक में आज स्क्रैप पॉलिसी पर चर्चा हुई। इस पॉलिसी पर मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर देना सही कदम है। सही है जो मंत्री जी ने कहा
कि व्हीकलर पोल्यूशन जो है उसका मेजर पार्ट कमर्शियल व्हीकल से आता है, तो उसको पहले टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही है, मगर साथ साथ जो गवर्नमेंट के और विभाग हैं उनको बाकी जो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है जो कहीं ज़्यादा है एक्चुअली, उनको भी टैकल करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने 94 सिंचाई कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत और जांच के बाद इन्हें रद्द किया गया है। कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वक्त में कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। इस लिहाज से ये कांग्रेस एनसीपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रोजेक्ट को रोकना है, रोक देना है, ये मैं समझता हूं कि कोई गलत फैसला रहेगा। ये डेवलपमेंट शुड गो ऑन, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सरकार आती जाती है, छोटी लोकशाही है, इसमें लोकतंत्र में तो ये होता रहता है, लेकिन तो इंक्वायरी के नाम पे अगर आप प्रोजेक्ट ही रोक देंगे तो उस क्षेत्र का काफी हम नुकसान कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि सरकार का कदम बहुत गलत है। पिछले 2 साल में एसीबी के माध्यम से इंक्वायरी चल रही है, किसी भी प्रकार के कोई सबूत सरकार को नहीं मिल पाए और सरकार पूरी तरह से अपने झूठ का, उनका जो भी पर्दा वो पास होता जा रहा है। आने वाले दिनों में भी जो सच है वो जनता के सामने आएगा। ठेका सरकार ने रद्द किया है, उनका अधिकार है, लेकिन सरकार पिछले 2 साल से सिंचाई के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर पा रही है, ये भी सच्चाई है। कोकण और विदर्भ में जिसकी जांच एसीबी के अंतर्गत यहाँ पर हो रही है, वो प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर जो है, कोकण में तो 12 प्रोजेक्ट है, उसका कॉन्ट्रैक्टर एक ही है। गोशीखुर्द में भी कई जगह वो कॉन्ट्रैक्टर वहां पर है, इसलिए काम कई दिनों से रुका हुआ था। इसलिए आज कैबिनेट में हमने फैसला किया है कि ये जो कोकण के जो 12 काम है, गोशीखुर्द में करीब करीब 81 काम है और नासिक का ये 94 काम, 94 काम, इनकी थोड़ी जांच कर इसको हमने कैंसिल करने का फैसला लिया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ठेके देने में गड़बड़ी पाए जाने के कारण सरकार ने ठेके रद्द किए हैं। अगर आप रिलायंस कम्युनिकेशन के ग्राहक हैं तो आपको जल्दी कॉल ड्रॉप की समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। रिलायंस ने ₹1 में कॉल ड्रॉप से छुटकारा ऑफर लॉन्च किया है। क्या है यह ऑफर और क्या है इसके फायदे, आइए आपको बताते हैं। सर, कॉल ड्रॉप से छुटकारा ऑफर रिलायंस से बोल रहा है। आपके हिसाब से अभी भी दिल्ली एनसीआर में कॉल ड्रॉप की समस्या कितनी ज्यादा है? देखिए, समस्या तो है, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सब ऑपरेटर्स ने मिलके बहुत अच्छा काम किया है। हमने भी काफी साइट्स ऑगमेंट करी है, नेटवर्क को ऑप्टिमाइज किया है, तो वी आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। इसीलिए हम लाए रिलायंस 4G LTE पे एक नया प्रोपोजिशन, क्योंकि एक अच्छा नेटवर्क है, 850 मेगाहर्ट्ज पे हमने इसको लॉन्च किया है और हम चाहते हैं कि दुनिया इसको यूज करे। तो ₹1 पैक में हम उन्हें 10 मिनट डेली ऐप टू ऐप टॉकिंग की व्यवस्था दे रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि ऐप टू ऐप टॉकिंग एक नेचुरल वे फॉरवर्ड है। आज के यंगस्टर्स इसका बहुत उपयोग करते हैं। आने वाले समय में जैसे स्मार्टफोन की संख्या बढ़ती है, वैसे ही ऐप्स का कंजम्पशन भी बढ़ेगा और एक ये नया तरीका कॉल करने का जो इजाद होकर आएगा, इट विल बिकम द मेन स्ट्रीम इन द फ्यूचर। एसयूवी सेगमेंट की आइकॉनिक ब्रांड जीप ने अपनी 3 पॉपुलर गाड़ियां देश में लॉन्च कर दी है। इनमें ग्रैंड चेरोकी, SRT, ग्रैंड चेरोकी और रैंगलर अनलिमिटेड शामिल है। इसकी कीमतें 71,60,000 से 1,12,00,000 रुपए के बीच है। ग्रैंड चेरोकी जीप के बेड़े में एक लग्जरी एसयूवी है, जबकि रैंगलर रगड ऑफ रोडर है। इन गाड़ियों में कई ऐसी खूबियां हैं जो इस सेगमेंट की दूसरी एसयूवीज में फिलहाल नहीं है। आज भारत की पहली क्राउड फंडेड ई बाइक लॉन्च हुई। स्पैरो देश की पहली ई बाइक है जो लॉन्च होने से पहले ही 40 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी है। यह ई बाइक 3 मॉडल्स में मिलेगी, E30, E60 और E100, जो एक बार बैटरी चार्ज करने पर 30, 60 और 100 किलोमीटर तक चल जाएंगी। इनकी कीमत है 29,900 रुपए से लेकर 50,900 रुपए के बीच। 10 सेकंड में बाइक 25 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकती है। इसकी डिटेचेबल बैटरी 4 से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है और इसके टायर साइकिल की दुकान पर ठीक करवाए जा सकते हैं। इसे साइकिल की तरह भी चलाया जा सकता है। और अब आपको जाते जाते दिखाते हैं वो तस्वीरें जिनमें एक चैनल के कैमरामैन की जान बच गई। वक्त रहते प्रधानमंत्री मोदी ने कैमरामैन को वहां से हट जाने के लिए कह दिया। कैमरा आ जाएगा और इधर आएगा।
कैमरा मतदान तो ही जो ठीक है